morning, dear students. Today we are going to discuss more about binomial theorem. तो बच्चों हम लोगों ने कल बात किया था what is a binomial theorem. So binomial theorem is nothing but the expansion of x plus y की power n, where n is a positive integer, and we saw that this is equal to x to the power n plus nc1, x to the power n minus 1, y to the power 1, plus nc2, x to the power n minus 2, y to the power 2, and so on, y to the power n, where NCR is nothing but factorial n upon factorial r n minus r factorial. And using this, we can expand the terms such as x plus 1 की power, say 6. So this would be equal to, here the first term is x and the second term is 1 upon x. So you can find the expansion of this as 6c0 x to the power 6 1 by x की power 0 plus 6c1 x की power 5 into 1 upon x की power 1 plus 6c2 x की power 4 plus 1 upon x की power 2. One thing you can see, observe that this power of the first term is decreasing and the power of the second term is increasing, and overall power remains the same. As a whole, this 6 plus 0, 5 plus 1, 4 plus 2, this whole power remains the same, plus 6c3 x की power 3 1 upon x की power 3 plus 6c4 x की power 2 1 upon x की power 4 plus 6c5 x की power 1 1 upon x की power 5 plus 6c6 x की power 0 1 upon x की power 6. And after a little bit of simplification, we can see that this is nothing but x to the power 6 plus 6x की power 4 plus 6c2. What is 6c2? 6c2 is nothing but 6 into 5 by 2 into 1. So this is equal to 15. So 15, you see this term, 6c2. 6c2 is 15. So 15 x की power 4 and down this denominator x की power 2. So this would be 15x square. So interestingly, you can see that this is power 6, this is power 4, this is power 2. So the power is decreasing as a whole. The power is decreasing. Then 6c3. 6c3 is nothing but 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into 1. That is 3 into 2, 6. That is 20. And 6c3, 20. And now you can see that this is x to the power 3 and this is x to the power 3. So this is a constant term. This term is known as a term which is free from x. So this is a, you can say, free from x term or independent term of x, plus 6c4. 6c4 is going to be equal to 6c4. You can see 6c4 is nothing but 6 factorial upon 2 factorial into, you can say, 4 factorial, and this is also equal to 6c2 because 6c2 is also same. So 6c4 is equal to 6c2, and what is 6c2 is 15. So 15, and you can now see that 6c 1 2 3 4 6c4, and here denominator में in the denominator there is a x to the power 2 and here x to the power 4 and here x to the power 2. So it would become x to the power minus 2. X to the power minus 2. Still the same pattern follows. See, 6, 4, then 2, then 0, x to the power 0, and then minus 2. Okay. So then 6c5.
plus 6c5. And what is 65? You see, 65 is nothing but, this 65 is nothing but 61. That is 6 x की power minus 4 plus 6c6, that is 1. That is what? X की power minus 6. So this is so interesting. You see, 6, 4, 2, 0, minus 2, minus 4, minus 6. And one more thing you can see, 1, here also 1. 6, here also 6. 15, here also 15. And this is 20. So this is a, you can say, this term which lies at the middle, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, which lies at the middle, is what? A constant term, or a term which is free from x, or a term which is independent of x. So sometimes this term becomes very, very interesting for us. So बच्चों, ये जो binomial theorem है ना, इसमें आप देखो a lot of pattern is coming, and in this way you can expand using the binomial theorem. आपको बस ये करना है कि यहाँ पे जो ये पूरा पहला टर्म बन जाएगा और ये पूरा दूसरा टर्म बन जाएगा. अब कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको और करके दिखाता हूँ, and then we will go to more problems. लेकिन अभी जो हमने किया है उसको थोड़ा सा अप्लाई करके हम देख लेते हैं, और जरा अप्लाई करके देखते हैं. तो बच्चों एक क्वेश्चन है, what is the, sometimes what happens, sometimes you are not asked the whole expansion, but you are in fact asked to find some special term out of the many terms. You see here so many terms are there. Out of these terms you will be asked some terms. So for example, suppose there is a question, what is the coefficient of and there are three parts in this question. What is the coefficient of x to the power 7 in ax square plus 1 upon 3x to the power 11. Number 2, what is the coefficient of x to the power minus 7 in ax minus 1 upon bx square to the power 11. And 3, relation between A and B if answer in the first question is equal to answer in the second question. Means यहाँ पे बच्चों जो आ रहा है कोएफिशिएंट पहले क्वेश्चन में x की पावर 7 का, वो जो दूसरे क्वेश्चन में x की पावर -7 का कोएफिशिएंट है उसके अगर इक्वल है, then in that case what is the relation between A and B? So this is a nice question where you are not asked to completely expand this or completely expand this, but to simply find the coefficient of x की पावर 7. But we will see what happens. So number 1, you see, so when you write ax square plus 1 upon 3x to the power 11. So when you expand it, then what would happen? This is the first term and this is the second term. So you can write 11c0, that is 11c0 ax squared to the power 11, 1 upon 3x to the power 0. So here, what is the power of the, you can say x, you have to just focus, see A and B are constant. So you have to just focus on the x term. What is the power of the x? Because they are interested in the power
of x की power 7. So we can observe the pattern. So here x की power, what is the x की power? 22. Here x की power 22 is there. You have to see, because x is square to the power 11. This x is square to the power 11. So this is 22 plus 11c1 ax square to the power, and this would decrease. So this is 10, and this would increase. That is 1 upon 3x to the power 1. So here, what is the power of x to the power? What is power of x? So you see, here this is 20, and this is here the power of x is 1 in the denominator. So 20 minus 1, so you will get 19. Here the power is 19. So you can see that here the power was 22, and now here the power is 19. ठीक है ना? तो again plus 11c2 ax to the power 2 to the power 9 and 1 upon 3x to the power 2. This power is, you can say, increasing. 1 upon 3x power is increasing and ax square power is decreasing. Now again you look, what is the power of x here? So this is 18. This is 18 and this is 2. So 18 minus 2 is 16. So this is x to the power, you can say 16. So you can see that there is a pattern. This is 22 and this is 19. So what is the gap? 3, and then again 16. So in this way, obviously we are going to get somewhere x to the power 7 also. So चलिए चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं, ठीक है ना? तो plus 11c3 ax square to the power 8, 1 upon 3x to the power 3 plus 11c4 ax to the power. So what would happen? You just see what would happen. Here it would become this is x to the power 16, and this would be 13, and then 11c4, and I am not writing this. This would be 10, and then plus 11c5, and now here it would be x to the power 7. So this is, what is this term? This is ax square to the power 6 and 1 upon 3x to the power 5, and so on. This is so on. And here you are going to get x to the power 7, because you see, in fact, we can find the general term and we can find, we can directly land at this. But before landing to this directly, I want to see what is the structure of the binomial expansion. And this would help you a lot when we will explore about the binomial theorem deeper ahead, such as what is the numerically greatest term, etc. So that's why I just want to get insight about the terms and the pattern which is existing in the binomial expansion. Okay, तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे जो है ये आप देखो, यहाँ से 22, फिर ये 19, फिर यहाँ पे ये 16, फिर यहाँ पे ये 13, फिर यहाँ पे ये 10 और फिर यहाँ पे 7. यहाँ तक हम यहाँ पे पहुंच गए. इसका मतलब क्या हुआ? What is the coefficient of x to the power 7 is 11c5, and now you see a to the power 6, because you are just interested in the coefficient, not the, you are just interested in the coefficient of x to the power 7. So this is a to the power 6. यहाँ से आपको मिल जाएगा a to the power 6, and यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 upon 3 to the power 5. 1 upon 3 to the power 5. ये मिल गया आपको. उसी तरीके से बच्चों जो, तो ये हमको मिल गया. This is the answer. This is the answer of the first part. What is the coefficient of x to the power 7? So you have got the coefficient of, you can say, x to the power 7 as 11c5, a to the power 6, 1 upon 3 to the power 5. This is the answer of the first part. Now the second part.
coefficient of x to the power -7 in extension of ax minus 1 upon bx square to the power 11. All right. So बच्चों यहां से अब now see again you do the same thing. तो यहाँ पे बच्चों जो आएगा पहला टर्म आएगा 11c0, this is 11c0 and ax to the power 11 and bx square, this is minus bx square to the power 0. तो यहाँ पे जो ओवरऑल पावर आएगा x की पावर जो आएगा वो आएगा 11. You have to keep in mind plus 11c1 ax to the power 10 and 1 upon minus 1 upon bx square to the power 1. That we have to see. तो यहाँ पे ओवरऑल जो आ रहा है एग्रीगेट जो पावर आ रही है x की पावर जो आ रहा है, तो देखो यहाँ पे तो है x की पावर 10 और यहाँ पे है x की पावर 2. तो यहाँ से बच्चों क्या बन जाएगा, यहाँ से 10 और -2. सो 10 - 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. तो यहाँ पे जो पावर बन जाएगी हमारी वो 8 बन जाएगी. तो देखो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 8 बन गया. इसी तरीके से अब आगे बढ़ा देंगे हम इसको. यही पैटर्न सेम पैटर्न फॉलो होगा. प्लस 11c2 एंड इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे देखो 3 का गैप हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 5. ठीक है ना. प्लस 11c3 और keep as it is. So this is equal to this is nothing but 5 this is 2 and then plus 11c4 and whatever it would come, but the power of the x would be simply x की power तो बच्चों थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया था. आई थिंक नेट there was some disconnection. Now is it fine? Just let me know. Can you hear me clearly? बच्चों मुझे बताओ. Am I audible to all of you? Okay. ओके गुड. तो बच्चों यहां से देखो, यहां से आप देखो हम लोग पहुंच गए यहाँ पे. वी हैव रीच्ड. सो नाउ यू कैन सी दैट दिस टर्म इज नथिंग बट, यहाँ पे बच्चों ये जो हमारा टर्म आएगा 11c5 ax to the power 6 1 upon 3x square with negative sign and to the power 5. और ये बच्चों आ जाएगा यहां से. सो कोफिशिएंट ऑफ x to the power -7 is 11c5 a to the power 6 1 upon -3 to the power 5. ये आ गया कोफिशिएंट. ठीक है ना. तो देखो बच्चों आपको मिल गया, आपको कोफिशिएंट ऑफ x to the power 7 भी मिल गया और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x to the power -7 भी मिल गया और इन दोनों को हम इक्वेट भी कर सकते हैं. ठीक है ना. तो अगर तीसरा जो पार्ट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 11c5 a to the power 6 upon 3 to the power 5 is equal to 11c5. You can say here 11c5. अच्छा यहाँ पे एक्चुअली बच्चों ये b है, यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि ये हमारा जो दूसरा टर्म है ax मान ये b है, तो यहाँ पे आ जाएगा इनफैक्ट b to the power 5.
and with negative sign also because power is odd. तो बच्चों इसमें जो है हमारा जो रिलेशनशिप हम निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं यहाँ से सीधे सीधे। हम पहले को ये जो पहला हमारा मिला है और जो हमारा जो ये दूसरा मिला है, इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे और यहाँ से हमको एक रिलेशनशिप मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था। अब व्हाट इज ए जनरल टर्म, ठीक है ना, तो ये तो काम आप लोग कर लोगे, ये प्योर यू कैन से दोनों को इक्वेट करना है और एक रिलेशनशिप मिल जाएगा आपको, ए और बी के बीच में यहाँ से एक रिलेशनशिप मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। इनफैक्ट तो यहाँ से बच्चों जो है आप दोनों में एक रिलेशनशिप बना लोगे और थोड़ा कंप्यूटेशन वगैरह देख लेना। यहाँ से a टू द पावर 6 और b टू द पावर 5, ठीक है, और ये 10 और ये जो है यहाँ पे जो है जो 7 यहाँ पे जो आ रहा था 6, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ये जो है हमारा पहला पावर आ रहा था कितना 11, दूसरा 8, फिर ये 5, फिर ये जो है 2 और फिर ये -1 और ये फिर -4 और ये बच्चों यहाँ पे एक्चुअली ये 6 है, थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो रहा था जिसको मैं रिपेयर कर देता हूँ। ये इनफैक्ट 11 से 6 है और यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 6, ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग ये रिपेयर हो जाएगा और ये हो जाएगा a टू द पावर 5 और ये हो जाएगा b टू द पावर, हाँ यस 6, और ये इनफैक्ट प्लस हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये क्योंकि पावर 6 है। हाँ आई एम सॉरी, देयर वाज लिटिल बिट एरर इन द कंप्यूटेशन। तो बच्चों यहाँ से आप देखो, यहाँ पे आप दोनों को कंपेयर कर लोगे। यहाँ से जो है a टू द पावर 6 अपन 3 टू द पावर 5 और यहाँ पे a टू द पावर 5 और ये जो है 11c 5 है और ये 11c 6 है, दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ से दोनों को कंपेयर करोगे तो 11c 5 a to the power 6 upon b to the power 3 to the power 5 is equal to 11c 6 a to the power 5 1 upon b to the power 6। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से ये a आ जाएगा और a is equal to 3 to the power 5 upon b to the power 6। तो ये एक रिलेशन आ गया बच्चों, ठीक है। अब कोई भी देखो जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देता हूं। जनरल टर्म आपको पता है कि x प्लस वाई टू द पावर n जो होता है वो दैट इज समेशन NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r इज इक्वल टू 0 टू द पावर n, और इसी को जब आप एक्सपेंड करते हो तो आता है NC0 x टू द पावर n y की पावर 0 प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 y की पावर 1 एंड सो ऑन प्लस NCn x टू द पावर 0 y टू द पावर n आता है। तो बच्चों इसमें अगर फर्स्ट टर्म की हम बात करें, फर्स्ट टर्म, सो दिस इज NC0 x to the power n y to the power 0 that is x to the power n। सेकेंड टर्म की अगर बात करें तो NC1 x to the power n minus 1 y की पावर n that is, हाँ इसको ऐसे ही रहने दो। तो बच्चों इस तरीके से हम कंटिन्यू करें अगर, तो यहाँ पे जो जनरल टर्म मान लो हम r प्लस 1 टर्म निकालना चाहते हैं, तो देखो यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे अगर r प्लस 1 होगा तो ये क्या आ जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू NCR x to the power n minus r y to the power, इसी को बच्चों हम जनरल टर्म बोलते हैं। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे करके दिखाया था, आप सीधे सीधे बच्चों आप चाहते, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा था, मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो
अच्छा एक चीज और इस तरीके से बच्चों कंटिन्यू करोगे तो जो लास्ट टर्म आएगा वो दैट विल बी n+1 टर्म एंड दैट इज NCN y टू द पावर n। तो देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो एक चीज आपको समझ में आएगी यार, टोटल टर्म्स यहाँ पे कितने हैं, टोटल टर्म्स इज इक्वल टू n+1। n+1 would be the total number of terms in this polynomial expansion, or this can be called as a general term. This term can be called as a general term because it is just constructing all other terms by just, आप देखो अगर इसमें अगर आप r को 0 कर दो, if you plug in r is equal to 0, 1, 2 and so on, and then you will get all other terms. You just plug in here r is equal to 0, so you will get this first term, and if you plug in r is equal to 1, you will get this second term and so on. So this term is called as a general term. ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये तो देखो जनरल टर्म हो गया, और इस क्वेश्चन को आप सीधे जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जनरल टर्म का, उसका यूज करके ये क्वेश्चन आप सीधे कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन अगर आपको करना है x टू द पावर 7, तो आप सिंपली क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x to the power 7 in ax square to the ax square plus 1 upon 3x to the power 11। ये बच्चों क्वेश्चन है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, you write, suppose the general, you just write tr plus 1, so this is what ncr ax square to the power n minus r 1 upon 3x to the power r. Okay, and now suppose this is this general term is giving you the x to the power 7 coefficient, so here there should be, तो यहां से आप क्या कर लोगे, देखो यहाँ पे x की पावर, देखो यहां से क्या आएगा, यहां से आप देखोगे यहाँ पे आएगा x टू द पावर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो NCR a टू द पावर n माइनस r अपॉन 3 टू द पावर r x टू द पावर 2n माइनस 2r माइनस r हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो n कितना है, यहाँ पे n तो देखो n तो है यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे 11 कर लो 11, तो ये हो जाएगा 22, तो 22 माइनस 3r इज इक्वल टू 7, तो यहां से 3r कितना हो जाएगा, ठीक है ना, और r आ जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगा। तो देखो आपका जो 6 टर्म होगा, 6 टर्म इज गोइंग टू गिव द डिजायर्ड term, that is the coefficient of x to the power 7, so you could directly land over here। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट है जनरल टर्म का। अच्छा अब किसी भी एक्सपेंशन में बच्चों मिडिल टर्म कैसे निकाला जाता है, और मिडिल टर्म का एप्लीकेशन भी मैं थोड़ा आपको करके दिखाऊंगा। तो मिडिल टर्म, तो देखो x प्लस वाई टू द पावर n में जो है टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स हैं n+1। देयर आर टोटल n+1 टर्म्स इन ए बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इसमें दो केस बना लो, केस 1 n इज इवन, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी, नंबर ऑफ टर्म्स तो n+1 ही होगा, एंड दिस वुड बी नथिंग बट ऑड। अच्छा आपको पता है कि अगर किसी में भी अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं मान लो एक लाइन में है, तो अगर ये 5 लोग अगर एक लाइन में है, मैं थोड़ा चेक कर लो सब कुछ ठीक है कि नहीं है, ठीक, हाँ केशव आपने कुछ क्वेश्चन भेजा है, आप फिर से एक बार बता दो प्लीज, क्या कुछ पूछना चाहते हो, अगर आपका क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो आई थिंक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया जो आप पूछना चाह रहे थे। ओके तो बच्चों यहां से देखो, अगर 5 लोग अगर है किसी लाइन में, तो ये बच्चों ये बीच में है, देखो ये जो टर्म है वो बीच में है, थर्ड टर्म इज एट द मिडिल। अब इस थर्ड तक आप कैसे जा रहे हो, जरा इसको एक्सपेरिमेंट करो, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करोगे तो देयर आर फाइव पीपल in a row and the third person is going to be the middle person because
इसके पहले दो लोग हैं और इसके बाद में भी दो लोग हैं और ये बीच वाला है। तो यहाँ पे आप कैसे जा रहे हो, आप जा रहे हो 5 + 1/2 करने पे, दैट इज थर्ड टर्म। तो यहाँ पे बच्चों जो है नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n+1 है, दैट इज ऑड। सो मिडिल टर्म वुड बी n+1 + 1/2th term. This is going to be the middle term. And what does it means? It means this is n/2 + 1th term. तो बच्चों यानी कि Tn/2 + 1th term is going to be the middle term, and this is nothing but Ncn/2 x to the power n/2 y to the power n/2. This is going to be the middle term, and there would be exactly one middle term. Clear? Now case 2, n is odd, so total terms would be n+1, and this would be, you can say, even. तो अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना है, 1 2 3 4 5 6 लोग अगर एक रो में हैं, तो मिडिल लोग जो मिडिल पोजीशन पे हैं ये दो लोग होंगे, ठीक है ना। यानी कि इसके पहले आप देखो दो लोग हैं और इसके बाद में भी दो लोग हैं, तो ये जो दोनों लोग होंगे, दैट these two people would be at the center of the, you can say, this row. इस रो में ये सेंटर पे हैं। तो अब ये सेंटर वाली रो कैसे निकालोगे, देखो कैसे आप यहां तक पहुंचोगे। तो 6 से कैसे जाओगे, तो 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो 3 आ जाएगा और तीसरा और चौथा टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि देखो थर्ड एंड फोर्थ, तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसको 2 से डिवाइड करने पे आप उस डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच रहे हो। तो मिडिल टर्म्स वुड बी 2 मिडिल टर्म्स, would be there, and those would be nothing but n+1/2th term and n+1/2 + 1th term. ये देखो बच्चों, आप समझ लो इसको अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से हमको निकालना है Tn+1/2th term and Tn+1/2 + 1। तो इसमें तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हमको +1 चाहिए, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं n-1/2 + 1 एंड Tn+1/2 + 1, क्योंकि देखो ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमारे जो मिडिल टर्म्स होंगे Tn-1/2 + 1, that is Ncn-1/2 x to the power n-1/2 and y to the power n-1/2 and Tn+1/2 + 1, and that is equal to Ncn+1/2 x to the power n-n+1/2 and y to the power n+1/2. These are the two middle terms in a binomial expansion, and a lot of questions could be done based on that. But मैं बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन जो है करना चाहता हूं, जो कि थोड़ा जो आईआईटी में आया हुआ भी क्वेश्चन है, और दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, पे अटेंशन, और कुछ इजियर प्रॉब्लम्स आपके जो एनसीईआरटी में आप खुद से कर लेना, उसको बहुत सिंपल है, कोई डाउट अगर होती है तो आप पूछ लेना। तो बच्चों इफ 1 + x + x² to the power n is equal to a0 + a1x, pay attention, plus a2x² and so on। अच्छा, इसमें एक चीज आप मुझे बताओ, इफ यू वांट टू टेल, कि इसमें जो है देखो देखो इसको जब एक्सपेंड करोगे, ये एक पॉलिनोमियल है, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और इसका पावर n है। तो जब इसका पावर देखो, पावर n का मतलब क्या होता है, 1 + x + x² इंटू 1 + x + x², अगर n 2 हो जाए तो इस केस में x² इंटू x², यहाँ पे x की पावर 4 का टर्म जरूर आएगा, हाईएस्ट टर्म। मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही तो करते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट राइटिंग दिस इनटू लाइक दिस। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस तरीके से, कुछ क्वेश्चन आपको मैं बना के दिखाऊंगा। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हो,
तो इसका जो डिग्री आएगा वो कितना आएगा, x की पावर 2n आएगा, तो a2n x की पावर 2n। देन फाइंड नंबर 1 a0 plus a1 plus a2 and so on plus a2n। नंबर 2 a0 minus a1 plus a2 minus a3 and so on। और बच्चों जो लास्ट टर्म होगा, पे अटेंशन, यहाँ पे देखो a2n ही होगा, और वो दैट वुड बी विथ यू कैन से प्लस। देखो प्लस के साथ क्यों होगा, आप देखो यहीं से देख लो, ये a2 है तो इसके पहले प्लस लगा हुआ है, ये a0 इसके पहले प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे a4 है उसके पहले प्लस लगा हुआ है। तो इवन टर्म जो इवन नंबर, ये जो ये अगर इवन है तो उसके पहले प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी, हालांकि ये तो क्वेश्चन है। तो व्हाट इज दिस वैल्यू एंड व्हाट इज दिस वैल्यू। एंड नंबर 3 a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर एंड सो ऑन। और बच्चों प्लस a2n स्क्वायर, हाउ मच इज दिस। तो चलो देखते हैं। तो अगर हमने इसके पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे, आपको याद होगा, हमने देखा था कि x प्लस वाई टू द पावर n जो होता है वो nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y एंड सो ऑन ncn x की पावर 0 y टू द पावर n। तो हमने देखा था कि अगर x की जगह पे 1 रख दे और y की जगह पे 1 रख दे तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 एंड सो ऑन प्लस ncn। दिस इज द सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। और अगर हमने x की पावर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 रख दिया तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 एंड सो ऑन, और लास्ट में -1 टू द पावर n ncn। तो बच्चों अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, कई बार इसको ncr को हम लिखते हैं सिंपली cr। तो आप बोल सकते हैं c0 प्लस c1 plus c2 and so on cn is equal to 2 to the power n and c0 minus c1 plus c2 minus c3 plus c4 minus c5 and so on is equal to 2 to the is equal to 0। अच्छा बच्चों एक बात मैं आपको और बता दूं, यहीं से आप कुछ चीजें और भी डिराइव कर सकते हो साथ ही साथ में, c0 plus c2 plus c4 and so on is equal to c1 minus c3 plus c5 and so on, सॉरी प्लस प्लस, ठीक है ना। और आप बताओ कि इन दोनों का सम जो है बच्चों अगर करोगे तो 2 की पावर n आ रहा है यहाँ पे देखो, और ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 to the power n by 2 and that is 2 to the power n minus 1। तो ये कुछ बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड आइडेंटिटीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, और भी हम आइडेंटिटीज डिराइव कर सकते हैं और करेंगे भी। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो कोएफिशिएंट्स है आप खुद सोचो कि ये कैसे मिलेंगे, यहाँ पे क्या पुट किया जाए तो ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू 1 पुट कर दें तो ये मिल जाएगा। तो देखो पहला क्या है, सिंपली पुट x इक्वल टू 1, सो यू विल गेट a0 प्लस a1 प्लस a2 एंड सो ऑन a2n इज इक्वल टू नथिंग बट 3 टू द पावर n। दिस इज सो इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। लग रहा था कि हमको सभी को ये एक्सपेंड करना पड़ेगा, a0 a1 वगैरह को कंप्यूट करना पड़ेगा, but there is a trick here and that trick is just put x is equal to 1। now second one तो बच्चों सेकंड करने के लिए देखो, अब सेकंड में आप खुद बताओ कि यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए जिससे a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 आ जाए। तो यहाँ पे अगर x की जगह पे मैं -1 रख दूं तो ये a0 माइनस a1 प्लस a2 और माइनस a3 हो जाएगा। तो सिंपली पुट x इज इक्वल टू -1, so a0 minus a1 plus a2 minus a3 and so on plus a2n is nothing but put x is equal to -1, so what would happen, this is nothing but 1 minus 1 0 plus 1, so this is 1 to the power n, and that is so interesting. 1 is such a beautiful number that 1 to the power anything is going to be 1 only, so this is 1। अब तीसरा क्वेश्चन बच्चों जो है थर्ड क्वेश्चन, सो a0 थोड़ा इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, बार बार मुझे वहां पे विजिट नहीं करना पड़ेगा। a2n x to the power 2n 1 plus x square to the power n।
अब बच्चों जो हमको चाहिए यहाँ पे वो चाहिए a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि अगर x की जगह पे मैं रख दूं 1/x, अब ये थोड़ा सा जो है बच्चों कैसे ये सब आप गेस करोगे कि क्या करना है हमको, तो वो जैसे जैसे आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हो जाएगी कि व्हाट टू डू, हाउ टू गेस, व्हाट टू डू। तो अगर x की जगह पे 1/x रखते हैं तो a0 प्लस 1/a1 इंटू 1/x प्लस a2 इंटू 1/x स्क्वायर एंड यू कैन से x की जगह पे बल्कि माइनस x रख दो तो ये हो जाएगा माइनस प्लस a2x स्क्वायर माइनस a3 1/x क्यूब एंड सो ऑन। अब बच्चों जरा पे अटेंशन, पे अटेंशन। a0 स्क्वायर कैसे आएगा? अगर आप ये a0 यहाँ पे भी है और a0 यहाँ पे, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो a0 स्क्वायर आ जाएगा। a1x है यहाँ पे और यहाँ पे 1/x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस a1 स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को a2 और a2 इन दोनों को x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो यू कैन से दैट a0 स्क्वायर minus a1 square plus a2 square minus a3 square and so on. This is nothing but coefficient, you can say a term free from x in the product of these two, 1 plus x square into 1 minus 1/x plus 1/x square to the power n। तो समझ में आ रहा है? देखो मैंने क्या किया, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं आपस में तो देयर वुड बी मेनी टर्म्स बट सम टर्म्स वुड बी विच फ्री फ्रॉम x, तो जो फ्री फ्रॉम x टर्म होगा वो ये होगा। तो राइट हैंड साइड में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ये किसके इक्वल आ रहा है? देखो ये इक्वल आएगा 1 minus 1/x plus 1/x square to the power n। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इसमें जो टर्म फ्री फ्रॉम x है वही होगा इसकी वैल्यू। तो दिस इज व्हाट। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि इसको एक्सपेंड किया जाए फिर इसको एक्सपेंड किया जाए, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हॉरिबल। तो क्या करो, थोड़ा सा इसमें ट्रिक ये यूज करते हैं, 1 plus x स्क्वायर इंटू 1 minus 1/x प्लस 1/x स्क्वायर और इस पूरे का पावर n कर लेते हैं और इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या आएगा, तो सिंपल प्लेन टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन कर लो। सो 1 minus 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x minus 1 प्लस 1/x और थोड़ा कंप्यूटेशन पे आप लोग ध्यान भी देना, प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 टू द पावर n। और बच्चों कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 1/1 इससे कैंसिल हो जाएगा और बच्चों x इससे कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग नथिंग बट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर टू द पावर n। देख लो आप, और कुछ मिल रहा है, प्लस 1 आल्सो, प्लस 1 आल्सो। सो दिस इज नथिंग बट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये मिल जाएगा x टू द पावर 2n और ये बच्चों मिल जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर टू द पावर n। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे यू हैव टू जस्ट पे अटेंशन, यू हैव टू सिंपली पे अटेंशन। a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन an x की पावर a2n x की पावर 2n इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर n है ये। और जरा बताओ इसकी जगह पे अब हम x की जगह पे क्या आ चुका है? सिंपली x स्क्वायर आ चुका है। तो अगर x की जगह पे मैं x स्क्वायर रख दूं तो क्या होगा? a0 प्लस a1 x टू द पावर 2 प्लस a2 x टू द पावर 4 प्लस a3 x टू द पावर 6 एंड सो ऑन प्लस a2n x टू द पावर 4n।
is equal to 1 plus x square plus x to the power 4 to the power n, because this is true always. So this is true when you replace x with x square also. तो इस तरीके से बच्चों ये आ गया। अब मुझे आप लोग बताओ, चैट करके बताओ कि बच्चों हमको चाहिए इसमें अ टर्म विच इज फ्री फ्रॉम एक्स, एक ऐसा टर्म चाहिए जो फ्री फ्रॉम एक्स हो। तो इसमें बच्चों बताओ कि वो ये इसमें कौन सा टर्म लिया जाए सो दैट ओवरऑल जो आएगा वो फ्री फ्रॉम एक्स हो। तो अब देखो, अगर इसमें अगर आप x की पावर 2n का कोएफिशिएंट ले लोगे और नीचे x की पावर 2n है ही है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और वो टर्म फ्री फ्रॉम x आ जाएगा। ठीक है ना? सो विच टर्म यू आर एक्सपेक्टिंग, टेल मी, कौन सा टर्म? तो अब देखो, अब यहाँ पे ये 1 है तो ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है तो ये 4 है, यहाँ पे 3 है तो 6 है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो x की पावर 2n आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, an होगा। सो यहाँ पे an आ जाएगा, समझ रहे हो ना? a और ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली द आंसर इज नथिंग बट दिस इज गोइंग टू बी an। जस्ट लेट मी नो वेदर यू गॉट इट और नॉट। सब लोग बताएं, चैट करके बताएं कि आपको ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जस्ट लेट मी नो whether you got this. Bachcho, just let me know. I am asking about the question which I was discussing. Okay. So there are some issue in the chat. चलो, अब मैंने रिस्ट्रिक्शन वो कुछ चेंज हो जाता है कई बार। बच्चों, जस्ट लेट मी नो वेदर यू गॉट इट दिस, अदरवाइज आई वुड एक्सप्लेन इट अगेन। सब लोग बताएं, अक्षत, अर्जित, इशिता। तो कैसे अपना ऑडियो ऑन कर लो, जस्ट लेट मी नो। अच्छा, कुछ लोगों को समझ में आ गया। अक्षत, लेट मी नो, डिड यू गेट इट? यस नो में कुछ भी जवाब दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। केशव, आप बताओ कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया? सर एक बार रिपीट कर दो सर ये क्वेश्चन। देखो, ये पहला और दूसरा पार्ट समझ में आ गया आपको? यस सर। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, थर्ड पार्ट में बेसिकली आपको प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है ना? यस सर। हाँ, तो देखो इसमें थर्ड पार्ट जो है एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। देखो, ये सिंपली इसको आप लिख लो। देखो, ये तो दिया गया है, ठीक है ना? आप अपना ऑडियो ऑन रखो। यस सर। एक्स की जगह पे अगर मैं -1 अपन एक्स रख दूं तो कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो ये क्या बन जाएगा, a0 माइनस a1 अपन एक्स प्लस a2 अपन एक्स स्क्वायर माइनस a3 अपन एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा ना? यस सर। एंड दिस इज इक्वल टू 1 - 1 अपन एक्स। राइट हैंड साइड में भी वही उसी तरह का चेंज आ जाएगा। अब देखो, yes, ये इसका एक्सप्रेशन ये है और इसका एक्सप्रेशन ये है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हम, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो जो कांस्टेंट टर्म होगा लेफ्ट हैंड साइड में, a0 इंटू a0, a0 स्क्वायर होगा, a1 x और माइनस a1 x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x और x तो माइनस a1 स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये आ गया ना? यस सर।
यानी इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे तो मल्टीप्लाई करना बहुत ही मुश्किल काम है, सारे टर्म को मल्टीप्लाई करना, लेकिन सिर्फ वो टर्म जो कि कांस्टेंट टर्म है वो ये होगा। यस सर। तो राइट हैंड साइड में भी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो कांस्टेंट टर्म होगा वो इसके इक्वल ये सीरीज पूरी हो जाएगी। यस सर। तो अब हमें चाहिए और टर्म फ्री फ्रॉम एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दीज टू प्रोडक्ट। यस सर। अब ये पावर एन है, ये पावर एन है, तो ये पूरा पावर हमने एन लिख दिया यहाँ पे। यस सर। और इन दोनों को आपस में सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली मल्टीप्लाई। आप घर पे आराम से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपको समझ में। तो ये यहाँ पे पहुंच गया, ये समझ रहे हो ना? यस सर। अब x की पावर 2 हमने कॉमन ले लिया तो बाहर निकलेगा तो x की पावर 2n बन जाएगा। यस सर। और देखो ये जो है हो जाएगा ऐसे, x की पावर 2 और ऊपर क्या हो जाएगा, x की पावर 2 कॉमन ले लोगे तो, ठीक है ना? समझना की बात ना? तो ये जो है हमारा, तो ये बन गया हमारा 1 + x² + 1 / x²। और ये जो है हमारा हो जाएगा, यहाँ पे पहुंच गए हम, ठीक है ना? अब देखो ये यहाँ पे x की पावर 2n है और यहाँ पे भी हमको क्या चाहिए, अगर इसको कांस्टेंट बनना है तो यहाँ पे भी x की पावर 2n चाहिए। यस सर। तभी तो कैंसिलेशन होगा ना, और अल्टीमेटली ये टर्म फ्री फ्रॉम x आ जाएगा। यस सर। तो अब इसके एक्सपेंशन में हमको क्या चाहिए, इसके एक्सपेंशन में हमको चाहिए, इनफैक्ट यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे ये x की पावर 2 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा x की पावर 4 + x² + 1। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ये हो जाएगा x की पावर 4, शायद इसी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना? यस सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये अब इसमें जो है देखो, अब ये जो है अब इसमें आप इस एक्सपेंशन में आपको चाहिए एक ऐसा टर्म जो x की पावर 2n का टर्म हो, जो कंटेन करे। तो अब देखो मैंने क्या किया कि ये इसके इक्वल है, अब x की जगह पे x² रख दो। ओके। तो ये सिंपली ये बन जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें हमको चाहिए x की पावर 2n का कोएफिशिएंट चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो 4 है, 3 है तो 6 है। तो बताओ यहाँ पे x की पावर 2n कहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे an हो। an, तो an x की पावर 2n यहाँ पे आ जाएगा, और an x की पावर 2n और डिवाइडेड बाय x की पावर 2n फ्रॉम हियर। यस सर। तो an आ गया ना फाइनली? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। अच्छा, आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ बच्चों। आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करना। क्वेश्चन इज, आप सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लें। मैं ये डेवलप करना चाहता हूँ ना कि आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आए, ना कि आप सिंपली रट्टा, ठीक है ना? कई सारी चीजें मैंने जो आज डिस्कस की हैं, रट्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको डायरेक्ट उस पर अटैक कर सकता था और कुछ चीजें सिखाने के वास्ते, बट जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं ना कि व्हाट इज अ बाइनोमियल थ्योरम एज ए होल, तो तब तक एक विजुअलाइजेशन नहीं होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं आएगी। तो बच्चों एक क्वेश्चन आप लिखो, और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इफ ए बी आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x³ in 1 + x + 2x² + 3x³ to the power 4, क्वेश्चन लिख लो, and 1 + x + 2x² + 3x³ + 4x to the power 4 to the power 4 respectively, what is the value of a minus b? आपको मैं एडवाइस यहाँ पे हिंट ये देता हूँ कि इसको आप सिंपली लिख करके सोचो, 1 + x + 2x² + 3x³ into 1 + x + 2x² + 3x³, ऐसे ऐसे लिख करके सोचो, और सोचो कि कैसे हमारा आता है x³, हाउ डू वी गेट x³। तो वहां से आपको एक अंदाजा मिलेगा, और फिर दूसरे वाले में भी कैसे आपको मिलता है x³ और वाले वाले में भी कैसे मिलता है, और आपको x³ का जो कोएफिशिएंट का जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा। थोड़ा थिंक करना, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट यू कैन कम टू द कंक्लूजन इफ यू राइट दिस। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।